Hello students, welcome to our discussion on electrostatics. This is part 5th of the series. I am Harsh Kapil. So far we have discussed basics about charge, its properties, permittivity, okay, how to calculate the force by a charge, Coulomb's law. All those things have been discussed so far. We have taken certain examples to help you understand properly those laws as well, and take an example of uniformly charged rod also to extend the concept of superposition, if you recall. All right, so we will take this discussion further. We discussed in the last class electric field strength. Okay, so now we will take this further here, right? Now, these are some institutional information where you can always get in touch with me for personal guidance program that I conduct, or any kind of problem that you are facing with your class 11th, 12th, or IIT, JEE, NEET, or competitive examination for physics if you are having any trouble. Okay. And during this lockdown, I hope that you are doing your preparation. You have not stopped it at all, because there are multiple online platforms those are providing free classes, okay, online. So you are availing those facilities. Okay, if in case you are having any trouble with a particular topic on physics, you can even ask me. I will make a presentation and video for you as well. All right, so stay safe, stay home, and keep learning, but do not stop. Okay, we have seen basic of the electric charge, how the bodies are charged using multiple methods, okay, by conduction, grounding concept, okay, how does it work, Coulomb's law in vector form also, okay, what is the unit of charge, dielectric constant, relative permittivity, the concept of superposition, okay, linear charge density of a rod, and how to calculate the force by it at a particular distance. Okay, I told you to keep revising your class 11th standard concepts like Newton's laws of motion, frictions, simple harmonic motion, fluid fluid mechanics. Those will be applied here. Those concepts will be applicable here. So you don't have to be confused. Okay, keep revising those, and I will also keep, explain those while those concepts are popping up here while solving these kind of problems. Okay, but make sure that you revise those as well. Okay, and we have seen these examples also where the Newton's laws of motion was applied. Electric field, we saw how to calculate. Okay, very similar to you know formula of Coulomb's. Okay, from Coulomb's law, how do we calculate the force? We just have to eliminate the charge, and it helps you find the electric field at a particular distance. We have seen that, discussed that in the last class. Okay, how do we write it in the vector form? Okay, electric field lines, the more the charge, the more the density of the lines. Okay, electric field lines between parallel plates. Okay, we have seen that. We have done a problem also, numerical problems. Okay, superposition principle, these we have seen. Okay, this was a very good example to help you understand the superposition principle also. Okay, the conducting plates, we discussed a numerical problem, this one. Now today we will take one more problem. Okay, this will bring more a good understanding for your old concept of circular motion, if you recall, centripetal and centrifugal forces. Okay, now this is a uh, charge q with a mass m. Okay, that is rotating in a vertical circle. Okay, this is suspended with a string. Okay, at o, this point you can assume it as a center. Okay, this is being rotated in this electric field, and you don't have to neglect the gravity. This is given over in this example, and it has been given an initial velocity u. Okay, it is rotating in the vertical circle. Electric field is applied is from up, from top to bottom, I mean in the downward direction. Okay, electric force would be applicable in the downward direction. Now what the question is, what would be the velocity, okay, minimum velocity
so that it is just able to complete the circle till here. Okay, from here, if it is given a horizontal velocity u, okay, what would be that sufficient minimum velocity so that it helps you just reach here? Okay, so that it completes the circle. Okay, now what you need to understand here is, you must have done this kind of problem in circular motion also, that sufficient velocity would be that velocity so that when it reaches this vertical point, okay, opposite to this point, it reaches to the vertical point here, the tension in the string becomes zero at that point, very point. Okay, सिर्फ इस पॉइंट पर जैसे ही ये पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में इस सर्कल के अपोजिट डायमीटर के अपोजिट पॉइंट पे, वर्टिकल पॉइंट पे पहुंचता है, हाईएस्ट पॉइंट पे, स्ट्रिंग का टेंशन ज़ीरो हो जाए. ओके, और बस उस यहाँ तक पहुँच के उसके बाद में ये इट विल बी एबल टू कंप्लीट द सर्किल. इतना वेलोसिटी इस पार्टिकल को मिलना चाहिए. ये है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग. क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है कि वहाँ पे टेंशन ज़ीरो हो जाए, ये आपको उसने बताया नहीं, बट ये कॉन्सेप्ट है. देखो फिर से समझ लो, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या वेलोसिटी दी जाए इसको, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, कि ये जस्ट कंप्लीट कर ले सर्किल. इतना क्वेश्चन पूछा गया है. यहाँ से u वेलोसिटी दी जाए और ये ऐसा रोटेट करते हुए इधर ऊपर वर्टिकली आए और डायमेट्रिकली अपोजिट हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जस्ट यहाँ से ऐसे निकल जाए. मिनिमम वेलोसिटी पूछी है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है. ओके, बट मिनिमम वेलोसिटी वो वेलोसिटी होगी. अब ये सवाल की आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पर आते ही इसका टेंशन ज़ीरो हो जाए. अब टेंशन ही क्यों ज़ीरो हो? इस पूरे क्वेश्चन में एक ही पुलिंग फोर्स है इसको जो वर्टिकली ऊपर लेके जा रहा है, और वो है टेंशन इन द स्ट्रिंग. वेलोसिटी तो आपने दे दी, बट बैलेंसिंग फोर्स इज द ओनली पुलिंग फोर्स हियर. It will keep balancing all the forces throughout the motion. ओके, तो बस यही क्वेश्चन है कि ये बैलेंसिंग फोर्स कैसे ख़त्म हो जाए. ओके, यहाँ वर्टिकल पोजीशन में, बस इतना. ख़त्म होते ही जैसे ही नेग्लिजिबल होगा वैसे बस इसको आगे थोड़ा सा मूवमेंट मिल जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया. क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, रश नहीं करना चाहिए बस सॉल्व करने के लिए. एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर बेसिक्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट लगा तो सॉल्व होगा. बट क्वेश्चन क्लियर हो गया. ये सवाल आपने यू मस्ट हैव सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन योर 11th स्टैंडर्ड. इट्स जस्ट ए रिवीजन. ओके, so what do we do normally in this kind of problem? We draw a free body diagram, right? Newton's laws of motion, circular motion combination. Okay, now at the bottom of it, where it was given an initial velocity u in the horizontal direction, okay, you see its own weight u would be working in the downward, its own weight mg would be working in the downward direction. Electric field E is in the downward direction. It has given a positive charge q, so that will be working in the downward direction. वो नीचे की तरफ QE फोर्स भी लगेगा, mg फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगा. ठीक है, और अगर इसका वेलोसिटी u है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आपके सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से याद आ रहा है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, बाहर की तरफ फोर्स क्या होगा, mu²/r. ठीक है, जब आप सर्कुलर रोटेट करते हो तो ये फोर्स बाहर की तरफ लगता है. ठीक है, बॉडी पे. तो ये फोर्स, तीन फोर्स लगेंगे बाहर की तरफ. एक QE नीचे की तरफ लग रहा है, mg फोर्स जो कि इसका वेट है और ग्रेविटी नेगलेक्ट नहीं की, नीचे की तरफ लगेगा, और चूंकि सर्कुलर मोशन है u वेलोसिटी के साथ, इस पर mu²/r का फोर्स बाहर की तरफ लगेगा. एक बैलेंसिंग फोर्स जो स्ट्रिंग की वजह से टेंशन T अंदर की तरफ लगेगा. ठीक है, अब आप बैलेंस फोर्स बैलेंस कर दो एट दिस पोजीशन. ये चूंकि पार्टिकल, दिस इज नॉट escaping this circular path. Okay, in the vertical direction there is no motion, right? This is moving in the perpendicular to the vertical direction. Okay, like this. Okay, so at this instant this is having no vertical motion, so you can balance the force. इस मोमेंट पे इस पर कोई भी वर्टिकल मूवमेंट इस पार्टिकल का नहीं है, तो आप न्यूटन्स लॉ का सेकंड लॉ लगाइए
और फोर्सेस को बैलेंस कीजिए, ठीक है। लेट मी शो यू हियर, ओके। नाउ टेंशन इन द स्ट्रिंग एट टी, ये आपका कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अपोजिट डायरेक्शन पे मैक्स इस पॉइंट पे टेंशन ज़ीरो होगा, बट वही सफिशिएंट वेलोसिटी इतनी पूछी गई है, ठीक है। सो ओनली बैलेंसिंग फोर्स इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, पुलिंग फोर्स और बैलेंसिंग फोर्स। नाउ इस पॉइंट पे, अच्छा सबसे पहले ओ पर भी हम बैलेंसिंग फोर्स लगाएंगे, बट पी पर आप देखो, आपको एक चीज़ पता चल गई है आपके अंडरस्टैंडिंग से कि टेंशन ज़ीरो होना है, ठीक है, स्ट्रिंग में। तो आप पहले आप बैलेंसिंग फोर्स का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, टी प्लस एम जी प्लस क्यू इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब अपोजिट डायरेक्शन में आप ये देखो कि टेंशन तो ठीक है इनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, वो बाद में ज़ीरो भी हो जाएगा। अभी हम रख देंगे टी को ज़ीरो। एम जी फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, कहाँ पर देख रहे हैं हम, पी पर देख रहे हैं, ओ पर मैंने बताया, पर अभी पी पर देख रहे हैं, वहाँ पे हम इक्वेशन लगाएंगे। एम जी नीचे लगेगा, क्यू ई नीचे लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, चार्ज वही है, तो फोर्स नीचे लगेगा। एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये किधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताओ। बाहर वेलोसिटी इस तरफ है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है, तो बाहर की तरफ लगेगा। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो ये एम वी स्क्वायर आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर बाहर की तरफ लगेगा अगर इसकी वेलोसिटी वी है, ठीक है। तो अब हम ये पूरा फॉर्मूला लिखे फोर्स बैलेंस करके, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल स्केप नहीं कर रहा है। अगर टी होता, अगर टेंशन, लेट अस अज्यूम दैट एट द पॉइंट पी इट हैज़ अ टेंशन T in the string, okay, so we can apply this Newton's second law and we can write this equation, T plus mg plus qe is equal to mv square upon r, करेक्ट है। फॉर u मिनिमम अभी हमने डिस्कस किया कि t इक्वल टू ज़ीरो, या आप रख दो, तो mg प्लस क्यू इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r हो गया, ठीक है। ये हो गया एट पॉइंट p, ठीक है। एट पॉइंट ओ आप जानते हो कि कैसे फोर्स बैलेंस होगा, बट अभी दैट इज नॉट नेसेसरी। व्हाट वी नीड टू डू हियर इज, ओके, we will have to apply energy balance, okay. You know from your 11th standard concept, conservation of energy, what are the conservative forces? Gravitational force is a conservative force, electrostatic forces is, you know, force are, these forces are also conservative forces, magnetic forces are also conservative forces, okay. The work done in the conservative forces does not depend on the path chosen. It only depends on the initial and the final point. Okay, you remember this concept? Okay, so electrostatic force is also a conservative force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। सो इसमें एनर्जी कंजर्व रहती है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इन सब में एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये उसका रिवीजन है। तो अगर आप एनर्जी बैलेंस लगाएंगे तो देखो कौन कौन से फोर्सेस हैं और किसने ओ से पी तक पहुंचने में किसने क्या काम किया है, उसकी वजह से चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, तीन फोर्स लग रहे हैं देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ई लग रहा है, क्यू ई उसका वैल्यू है। ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट वो भी डाउनवर्ड लग रहा है, एम जी उसका वैल्यू है। टेंशन और एम यू स्क्वायर अपॉन आर, अब बताओ इनकी वजह से कोई वर्क डन होगा, टेंशन की वजह से कोई वर्क डन होगा क्या? है तो फोर्स, फोर्स ने काम तो किया है, तो कोई वर्क डन होगा क्या? नाउ इफ़ यू रिकॉल योर 11th स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट, work done due to tension in the string in a circular motion is zero. Why? Because tension is always perpendicular to the displacement. Okay, what is the formula for the work done? W is equal to integral f dot ds, f dot ds, okay. फोर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ में। अगर फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा डिस्प्लेसमेंट के एवरीवेयर, देखो टेंशन यहाँ पर होगा तब भी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर होगा स्ट्रिंग, जब आपका जो पार्टिकल होगा इस पोजीशन में तब भी टेंशन इस तरफ होगा और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा।
स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर आप लो, सो किसी भी पोजीशन पे स्ट्रिंग का जो टेंशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। अभी पिक्चर क्लियर हो रहा है इस तरह से, ठीक है। वर्टिकली डाउनवर्ड पोजीशन में था, तब भी अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लोगे तो वो इसके परपेंडिकुलर होगा। किसी भी पोजीशन पे आप लोगे तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये परपेंडिकुलर ही रहता है टेंशन फोर्स। So this is always perpendicular. So this force will not be able to do any kind of work. Similarly, mu square upon won't be able to do because this is also a perpendicular to the displacement. So no other work would be done by any other force except Wmg यानी वेट के द्वारा जो वर्क किया जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क किया जाएगा, और दिस विल ब्रिंग द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हियर. अब देखो, mg फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में. सो दिस इज अपोजिट, तो दिस विल ब्रिंग ए माइनस साइन हियर. ओके, mg फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन है, बट डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू इट फ्रॉम o to p. Okay, what is the distance from o to p? Displacement. Okay, energy conservation does not depend on the path chosen, only the displacement between the initial and the final point. सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है उस पर डिपेंड करता है वर्क डन. ठीक है, कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करिए एक बार जाके, मैंने रिवाइज करवा दिया. बट यहाँ पे फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये माइनस साइन आएगा. करेक्ट है, माइनस एम जी इंटू 2r. दिस वुड बी द वर्क डन बाय द weight or the gravity here. Work done by the electrostatic force, what is the force? QE, but again this is working in the downward direction and the displacement is in the opposite direction, OP, in the vertical direction. This will also bring a minus sign here. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने वर्क डन लिख लिया, राइट हैंड साइड में change in the kinetic energy. What is that? What is the final velocity? If the final velocity is v, if we have assumed, and the initial velocity that we have to find out is u. Okay, the change in kinetic energy, change in the kinetic energy will be half mv square minus half mu square. Okay, this much is clear. Work done, change in kinetic energy. Okay, now if you solve these two equations, you have this mg plus qe is equal to mv square r, जहाँ पे आपने टेंशन एट पॉइंट p, आपने टेंशन को ज़ीरो करके सॉल्व किया था, ये इक्वेशन निकाली थी, और ये आपने एनर्जी बैलेंस, आपने एक ये इक्वेशन और एनर्जी बैलेंस की दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे. वी स्क्वायर का वैल्यू बस आपको यहाँ पे वी स्क्वायर का वैल्यू ये निकाल के यहाँ पे रख देना है. ठीक है, आइडिया दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है. तो आपको उससे यू स्क्वायर निकल के आ जाएगा और यू का वैल्यू ऐसे आ जाएगा. सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैथमेटिक्स तो आप कर लोगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. ठीक है, कोई डाउट रहे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं क्लियर कर दूंगा. ठीक है, अच्छा अभी एक और प्रॉब्लम देख लो यहाँ पे, ये एसएचएम का सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका ऑसिलेटरी मोशन से. ठीक है, देखते हैं कितना आपको याद है. अच्छा, एक ये ब्लॉक है मास एम, ठीक है, इस पर चार्ज प्लस क्यू का दिया और ये एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है. ठीक है, स्मूथ सरफेस है, और इस अचानक से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड टर्न ऑन कर दी जाती है. प्लग है, स्विच ऑन कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड चालू हो गई. इनिशियली ये डिस्टेंस डी था इसका वॉल से. ओके, सब स्मूथ है और कोई भी कोलिशन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन होगा, ये दिया है आपका प्रॉब्लम में. ठीक है, अब क्या पूछता है, फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन, एंड कि इसका कितना टाइम पीरियड होगा ये ऑसिलेट करेगा. पहले तो हमें ये पता करना है कि ऑसिलेट करता भी है कि नहीं करता है. सेकेंड थिंग ही आस्क क्वेश्चन इज आस्किंग इज इट एसएचएम, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है. सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको याद होगा कि फोर्स जो होता था रिस्टोरिंग फोर्स, वो डिस्प्लेसमेंट का प्रोपोर्शन डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता था. एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, ये एसएचएम स्प्रिंग मोशन में याद है आपको. टी इक्वल टू पाई बाय ओमेगा, ये सब हम करते थे. तो उसी में फोर्स मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन द डिस्प्लेसमेंट. दिस वाज द कंडीशन फॉर द एसएचएम. ओके, अच्छा चलो अभी पहले फ़िलहाल इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. देखो, फोर्स पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू है,
तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई, सिंपल। और ये पुश करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस पर इस डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। रुको मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में ही लगेगा। कितना लगेगा, क्यू ही लगेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना होगा, ए इक्वल टू एफ बाई एम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सिंपल। अभी तो बहुत बार हो गया डिस्कशन। ए इक्वल टू एफ बाई एम, तो क्यू ई बाई एम का इस पर एक्सेलरेशन होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, ठीक है। अचानक से आपने टर्न ऑन की इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्लॉक पहले रेस्ट में था, अब ये चालू होगा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। अभी आपका सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन के कॉन्सेप्ट लगाओ आप, ओके। टाइम टू रीच द वॉल कैसे निकालेंगे, आपको डिस्टेंस पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, ठीक है, एक्सेलरेशन पता है, तो आप कैसे करोगे, ओके। कर लोगे। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाइए, देखो यहाँ से आ जाएगा, टाइम आपका निकल के आ जाएगा कि कितना टाइम लगा आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। डिस्टेंस दिया, एक्सेलरेशन दिया, इनिशियल वेलोसिटी दिया, आराम से निकल आएगा, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। टाइम निकल आ गया। टाइम पर ध्यान देना, 2md/q। अच्छा, अभी मैंने बोला कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो हिट करने के बाद में इसका वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड पर, स्पीड पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, सिर्फ वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। देखो v अगर इस तरफ था तो ये माइनस वी हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अपोजिट माइनस वी हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो अब यहाँ से जब हिट करने के बाद में चलेगा, उस केस को कंसिडर करो जब ये हिट कर चुका है और इस तरफ स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी उस केस में क्या होगी, इन दिस डायरेक्शन v होगी, ठीक है। अभी हमने इस डायरेक्शन में मोशन कंसिडर कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में, -x डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में मोशन कंसिडर कर रहे हैं। देखो फिर से यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v हो जाएगी, वेक्टर वेक्टर अभी साइड में रखो, -x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हिट करने के बाद में v हो जाएगी। अब एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा कि डी एक्सेलरेशन होगा, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में लग रही है ना, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है ना। अब ये प्लस क्यू चार्ज है और इस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसके इनिशियल वेलोसिटी को, तो ये डी एक्सेलरेशन होगा, करेक्ट है ना। तो देखो डी एक्सेलरेशन होगा, ये देखो ये लिखा हुआ है, और वो क्या हो जाएगा, -QE/m। फोर्स तो क्यू ई रहेगा, बट वो उसको अपोज कर रहा है इसके मोशन को, तो -QE/m हो जाएगा। अब इनिशियल वेलोसिटी पता है और तुम्हें फोर्स डी एक्सेलरेशन पता है, ठीक है। अब तुम्हें ये पता लगाना है कि ये रुकने के पहले, अब जहाँ पे वर्ड आ गया रुकना, मीन्स इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो क्या क्या मालूम हो गया हमें, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v, डी एक्सेलरेशन QE/m, ठीक है। ये 3 चीज़ें पता है, तो क्या आप टाइम निकाल सकते हो, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं भाई। v² बराबर u² प्लस 2as, और v इक्वल टू यू प्लस ए टी भी लगाओ, क्योंकि टाइम निकलेगा उससे। v पता है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। u पता है इनिशियल वेलोसिटी, a पता है हमें डी एक्सेलरेशन -QE/m, तो t से निकल आएगा। समझ में आया, ठीक है ना, सिंपल है इक्वेशन ऑफ मोशन। सो यहाँ से आप देखो टाइम जो निकल के आता है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द सेम टाइम दैट वॉज द टाइम टेकन टू रीच और हिट द वॉल। कुछ क्लिक हो रहा है अभी कि जहाँ से शुरू किया था दीवार पे हिट करने के पहले, उसमें जितना टाइम लगा, द टाइम टेकन टू हिट द वॉल इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू अगेन रीच बैक टू द सेम पॉइंट, okay. If in case you want to check whether the distance is also same, you can also use the equation of motion, v square is equal to u square plus 2as, or s is equal to ut plus half at square. The distance will come out to be d as well. The point here is, yes, it is an oscillatory motion. Why? Because it is repeating its motion after same time interval. Everything is same here. Distance same, time interval same. It is an oscillatory motion. However, check the force. What is the restoring force, or what is the only force in this entire picture? The force is QE. Does it depend on displacement? Does it vary? No, force remains uniform throughout the motion. However, in simple harmonic motion, force is dependent on displacement x. So it is not a simple harmonic motion. समझा? फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी जो कि दोनों ही इस
प्रॉब्लम में कांस्टेंट दिए हुए हैं, फोर्स डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं। यस इट इज़ एन ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन है क्योंकि सेम टाइम इंटरवल पे ये रिपीट कर रहा है। ऐसे ही आगे जाएगा, हिट करेगा, फिर वापस आएगा, स्लो होकर ज़ीरो हो जाएगा, फिर हिट करेगा, फिर ऐसे रिपीट करता रहेगा, आगे जाके पीछे आके, आगे जाके ऐसे आगे पीछे करता रहेगा सेम, बट इट इज़ नॉट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, this is why I told you that keep revising your 11th standard concept, that will help you in this chapter। और बहुत आगे कॉन्सेप्ट आने वाले, सेम चीज़ रिवाइज होने वाली है ऐसे ही। चलो, Okay, so rest we will discuss in the next class.